Good morning, students. How are you? Today we will discuss the remaining questions of exercise 8.3. Our question number 10 is the population of the place is increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. 2003 में जो पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो गई है 54,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सॉरी रेट किस रेट से इंटरेस्ट किस रेट से ये इंक्रीज हुई है 5% से. सो रेट हमारे पास है 5%. फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005. अभी पहले पार्ट में अगर हम इसको सॉल्व करें तो टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 साल पहले 2 ईयर बैक बिफोर 2 ईयर. सो हमारे पास इस केस में हमें पहले की पॉपुलेशन निकालनी है. तो सपोज लेट पॉपुलेशन इन 2000 let population in 2001 was P, or you may say P नॉट, कुछ भी बना लीजिए, कोई भी आप इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं. हमने यहां पर अज्यूम किया P नॉट. नाउ in 2003 population in 2003 the population in 2003 is equal to 54,000. Rate of increase of population is equal to 5%. So 54,000 should be equal to P naught into 1 plus rate upon time, rate upon 100, and then power time. What is the time? Time is 2 years. तो 2001 और 2003 में डिफरेंस कितना है 2 ईयर का. सो 2 ईयर पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी वो ये है. Now let us calculate it. 54,000 P naught into 25 ones are 5, 5 twos are 10 and then 0. 20 ones are 20 and 1, 21 upon 20. Power 2. 54,000 is equal to P naught into 441 upon 400. Okay. So on solving this, what we get? P naught is equal to 54,000 multiply by 400. ये multiply होगा उधर जाके और ये divide होगा 441. Now it can be written as 4 4s are 16, 5 4s are 20, 3 zeros and 2 zeros, 5 zeros divided by 441. So on dividing it, what we get? So on dividing this, on solving this, what we get? So it is approximately, this will be the population. Okay. Now आप इस पे लिख सकते हो approximately. Approximately. Clear? So now this is the question number 10, part number 1. This is the only part number 1. What would be the population in 2005? अब 2005 में 2 साल के बाद यहां पर थोड़ा फिर से सिनेरियो चेंज होगा. क्वेश्चन सेम है
यहां पर हमारे पास पॉपुलेशन इन 2005, पॉपुलेशन इन 2005 हमने अज्यूम किया P1, क्लियर। सो हियर P1 विल बी इक्वल टू 54,000 into 1 plus rate upon 100 power टाइम कितना है 2 years, so it will be equal to 54,000 multiply by 21 upon 20, 21 upon 20। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 0 1 more 0, 2 से कैंसिल कीजिए, फिर 2 से कैंसिल कीजिए। Now we can multiply 135 to 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। So 135 into 441 will be equal to, so on multiplying this we get the result. So this is your question number 10. Now come to question number 11. Now come to question number 11. In an experiment in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increased at a rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours. 1 hour में 2.5% रेट से इंक्रीज हो रहे हैं बैक्टीरिया, और 2 आवर के बाद हमें बताना है कितना बैक्टीरिया होगा इफ द काउंट वाज इनिशियली to 5,06,000. Okay, so here the value of the P will be 5,06,000. Rate will be 2.5%. Time will be per hour, and time will be 2 hours. So हम फार्मूला वही लगाएंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का था यहाँ पर। So what will be the new या increased value of bacteria? So count of bacteria after 2 hours is equal to 5,06,000 into 1 plus rate जो given है upon 100 power time जो कि 2 hours है। So it will be equal to 5,06,000 multiply to 100 1 जा 100। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करो तो सबसे पहले आप लिख सकते हो 25 upon 1000, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 and then 0 power 2, so it can be written as 5,06,000 multiplied to 41 upon 40, 41 जा 40 and 1 41, इनका एलसीएम लेंगे तो आप ये आएगा। पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 मोर 0 से 1 मोर 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो रहे हैं, यस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। सो अब यहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ मल्टीप्लाई 1265 टू 41। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यही आ जाएगा 50 60। नाउ 5 6 8 1 5, इसे फिर 41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51865 एज इट इज, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
it will be this. So now we have to divide this value by 4. 4 5s are 20, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 6s are 24, 4 1s are 4, 4 6s are 24. Point 4 2s are 8, 4 5s are 20. So new calculated value of the bacteria after 2 hours will be 5,31,616.25. तो अप्रोक्सीमेट 616 तक भी आप लिख सकते हो. So you can write 5,31,616 approx. Okay, now this is your question number 11. Now come to question number 12. A scooter was bought at 42,000 rupees. Its value is depreciated. Depreciated means उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती चली जाती है at rate of 8% पर एनम. हमने आज स्कूटर 42,000 में लिया, कल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सपोज करो 30,000, उससे अगली साल 2-4 साल बाद और कम हो जाएगी, सपोज 25,000 एंड देन सो ऑन. तो कुछ रेट से वो डिक्रीज हो रही है. अभी तक हमने पढ़ा था कि इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें जो हम यूज करते थे फार्मूला थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे थोड़ा फार्मूला अलग होगा. जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट निकालते थे उसमें फॉर्मूला था प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम. यहां जब डेप्रिसिएशन की बात आएगी तो आपको फॉर्मूला कौन सा लेना है, डेप्रिसिएशन हो या डिक्रीज हो, जस्ट लाइक इंक्रीज की तरह, तो उसको सिमिलरली फॉर्मूला तो यही होगा. सो हम यहां लिखेंगे डेप्रिसिएटेड वैल्यू after time interval will be equal to initial value into 1 minus में rate upon 100 power time. जहां प्लस था वहां माइनस होगा, बाकी तो सेम है as it is. You can change just the variables. So इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए. So initial value of the scooter या current value of the scooter, current value or initial value of scooter is equal to what? 42,000 rupees. Okay, so now what is the rate of depreciation? Rate of depreciation क्या होगा? Will be equal to, given हमारे पास 8% पर एनम ईयरली में डिक्रीज हो जाता है. सो नाउ डेप्रिशिएटेड वैल्यू या न्यू वैल्यू, न्यू आफ्टर डेप्रिशिएटेड, after depreciation or decrease, new value of scooter will be equal to, फॉर्मूला ये लगेगा ओल्ड वैल्यू या जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी, करंट वैल्यू थी 42,000 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 100 पावर टाइम कितना है 1 ईयर. टाइम कितना है यहां पर 1 ईयर. टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर. ये भी लिख देते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. सो इट विल बी इक्वल टू 42,000 इंटू 100 वन जा 100 एंड 100 में से 8 गए तो 92 अपॉन 100. सो 2 zeros से 2 zeros. नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 92 विद 42. सो 92 मल्टीप्लाई टू द 42. So its value will be 3864 and then 0. So 38,640 rupees only.
So this is your depreciation